Assalamu alaikum, my dear students. Dear students of class 7th, as you know, we are dealing with the chapter measurement. In the first two lectures, we discussed about its introduction. We discussed about the physical quantities, types of physical quantities. Yes. Today, we are going to take up the first derived physical quantity, that is volume. In this chapter, in your textbook, we have to evaluate the volume of different objects, volume of solids, whether that solid is regular or irregular, and we have to find out the volume of liquids. Okay, before going directly to evaluate the volume of different objects, solids or liquids, we need to find out first what volume is actually. चलिए हम बात करेंगे about the definition of volume. ठीक है बेटा. आपको पता है matter is actually anything that occupies space. I'll write the definition of matter here. Anything that occupies space, anything that occupies space possess mass and can be felt by any one of our five senses. This is called as matter. This is called as matter. ओके बेटा, यहाँ पे हम स्ट्रेस करेंगे इस वाले पार्ट पे, दैट ऑक्यूपाई स्पेस. सो जो भी चीज़ ऑक्यूपाई करेगी स्पेस, जिसका मैस होगा एंड जिसको हम फील करेंगे विद एनी ऑफ आवर फाइव सेंसेस, दैट बिकम्स मैटर. बट वी विल बी स्ट्रेसिंग ऑन दिस पार्ट एक्चुअली, दैट ऑक्यूपाई स्पेस. सो व्हाट एक्चुअली ऑक्यूपाई स्पेस, व्हाट इज दैट कॉल्ड? सपोज अगर मैं आपके सामने एक फुटबॉल रखूं एंड वी हैव ऑल्सो ए क्रिकेट बॉल. यहाँ पे फुटबॉल है, दिस इज ए क्रिकेट बॉल. ओके बेटा, दिस इज ए क्रिकेट बॉल. सो अगर आपको मैं बोलूँ बेटा यहाँ पे आउट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स विच वन ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, आपका आंसर डायरेक्टली होगा दिस इज फुटबॉल. सो व्हाट इज ऑक्यूपेशन ऑफ स्पेस? ऑक्यूपेशन ऑफ स्पेस इज एक्चुअली अमाउंट ऑफ स्पेस. यहाँ पे स्पेस कितनी रखी है आपने, आपने ऑब्जेक्ट सेट करा है, इट्स ए फुटबॉल. इसने कितना स्पेस लिया है, इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, उस ऑक्यूपेशन ऑफ स्पेस को हम सिंपली क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहेंगे. Okay, beta. So, what is actually volume? The amount of space occupied by an object is called its volume. Simple. The amount of, I'll write the definition of volume, the amount of space occupied by an object, by an object is called its volume, is called its volume. Okay, beta. So, volume is a derived physical quantity. The definition of volume goes like it: the amount of space occupied by an object. देखो बेटा, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करा है. ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? जो स्पेस ऑक्यूपाई करे. अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट रेफर्स टू सॉलिड ऑब्जेक्ट. Object refers to what? Solid object. Solid object in the sense which have three-dimensional geometry. Which have what? Three-dimensional geometry. Three dimensions मतलब जिसके three dimensions होंगे, जिसका length भी होगा, जिसकी breadth भी होगी एंड जिसकी हाइट भी होगी. सो अगर मैं प्रिसाइजली एक्यूरेटली वॉल्यूम की डेफिनेशन को बताऊं, तो वॉल्यूम इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड ऑब्जेक्ट. इसको ब्रैकेट में हमने यहाँ पे लिखना है थ्री डायमेंशनल, जिसकी थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री होगी. उसी चीज़ को अगर वही स्पेस करेगा ऑक्यूपाई, उसी चीज़ को हम क्या कहेंगे? इसका वॉल्यूम. दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम. ओके बेटा, अब देखो यहाँ पे वर्ड आया थ्री डायमेंशनल. अगर मैं टू डी की बात करूँगा, सॉरी, टू डायमेंशनल की बात करूँगा, टू डायमेंशनल सपोज अगर हम यहाँ पे सर्कल आया, सर्कल is a two dimensional. We can draw this circle. This is a circle. This is a circle. We can draw this circle on paper. Paper itself is two dimensional.
ओके बेटा, देखो अगर हम तो इसका हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, तो जिस ऑब्जेक्ट का, जिस फिगर का थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री होगा, उसी फिगर को हम उसी फिगर की का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा। सो विल टॉक अबाउट द स्फीयर। अगर मैं स्फीयर की बात करूंगा, स्फीयर, सपोज दिस बॉल इज अ स्फीयर, this football is a sphere, we can find out the volume of sphere. That in means sphere has three dimensional geometry. We can find out the volume of football, we can find out the volume of cricket ball. Okay beta, we cannot find out the volume of circle because circle is only two dimensional. We cannot find out the volume of square. Square is only two dimensional because it has only two dimensions, length and breadth. Okay beta, we cannot find out the volume of a triangle. याद रखो बेटा, ट्राइंगल हैज ऑल्सो टू डायमेंशंस। जिसके भी टू डायमेंशंस होंगे, उसको उसका वॉल्यूम हम नहीं निकाल सकते हैं। सो दैट दिस इज एक्चुअली ए सॉलिड, बट इट डज नॉट मार्क ए सॉलिड ऑब्जेक्ट। ये सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं बनाता है। सॉलिड ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होगा जिसकी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री होगी। अगर सपोज इसी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इसी स्क्वायर को हम असेंबल करेंगे, वेरियस स्क्वायर्स को हम कंबाइन करेंगे, वहाँ से एक स्ट्रक्चर बनेगा, वहाँ से एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम क्यूब कहते हैं। उसी क्यूब को हम क्या करेंगे, उसी क्यूब का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। Are you getting me? So volume first refers to three dimensional geometry. ये आप याद रखो, जिसके थ्री डायमेंशंस होंगे, जिस स्ट्रक्चर में, जिस ऑब्जेक्ट में आपका आपके थ्री डायमेंशंस आएंगे, उसी स्ट्रक्चर का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। So this goes the definition of volume. Anything that occupies space, जिस, अब देखो, that occupies space is volume. Volume is actually a property इन मैटर। वॉल्यूम इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देखो मैटर क्या है, मैटर वो है जो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस। मैटर वो है जो ऑक्यूपाइज करेगा स्पेस, दैट मीन्स मैटर में वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। सो वॉल्यूम इन टर्म बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। आर यू गेटिंग मी? So we have to find out in your chapter, in your textbook, we have to find out the volume of, first we will talk about the volume of solids. We'll be talking about the volume of solids. Solids में आपके बेटा दो पार्ट्स आएंगे। एक तो we will be talking about the regular solids, and second we will be talking about irregular solids. We have to find out the volume of regular solids first, then we will be finding out the volume of irregular solids. Moreover, अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, तो मैंने आपको कहा कि वॉल्यूम में थ्री डायमेंशंस होते हैं, जिसमें लेंथ होगा, जिसमें ब्रेथ होगा, एंड जिसकी हाइट भी होगी। ओके बेटा, अगर हम एसआई यूनिट की बात करेंगे, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम? एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम में आपने देखना है कि इसमें कितने डायमेंशंस यूज़ हो रहे हैं। इसमें आपके थ्री डायमेंशंस यूज़ हो रहे हैं। एक तो लेंथ होगा, एक तो ब्रेड्थ होगा, एंड एक तो हाइट होगा। ओके, सो लेंथ को हम मेजर करेंगे मीटर में, ब्रेड्थ को मेजर करेंगे मीटर में, इट्स ऑल्सो लेंथ, हाइट को मेजर करेंगे मीटर में। सो मीटर इंटू मीटर इज क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, दैट मीन्स थ्री डायमेंशंस। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो वॉल्यूम नहीं बनता, वहाँ वहाँ वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। जहाँ पे आपका यूज़ होगा इन टर्म्स ऑफ थ्री डायमेंशंस में, मीटर, दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वेर देर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थ्री डायमेंशंस, दैट बिकम्स द वॉल्यूम। उसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वो स्पेस करेगा ऑक्यूपाई। सो इट्स एस आई यूनिट इज मीटर क्यूब। सो अगर आपको कहेंगे व्हाट इज एक्चुअली 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब क्या होता है बेटा? 1 मीटर क्यूब वो ऑब्जेक्ट होगा जो स्पेस करेगा ऑक्यूपाई, जिसकी डायमेंशन 1 मीटर लेंथ होगी, जिसकी डायमेंशन 1 मीटर breadth होगी, and 1 मीटर height होगी। That means a space occupied by an object, the amount of space occupied by an object having length, breadth and height as unity meter. सपोज अगर मैं यहाँ पे एक फिगर बनाऊँ, एक क्यूब की फिगर बनाऊँ, तो जिसमें लेंथ भी 1 मीटर होगा,
जिसकी ब्रेथ भी 1 मीटर होगी एंड जिसकी हाइट भी क्या होगी बेटा, जिसकी हाइट भी 1 मीटर होगी. सो ये वॉल्यूम, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सच एन ऑब्जेक्ट हुज लेंथ, breadth and height is 1 meter is simply called as 1 meter cube. Okay, so it was all about that introduction regarding the derived physical quantity, first derived quantity, that is the volume. In the next video lecture we will be finding out how volume is evaluated in terms of regular solids. Then we'll talk about the irregular solids. Okay beta, thank you.